In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. On behalf of Dean and Faculty of Management and Administrative Sciences, I, Dr. Sara Anjum, Assistant Professor, KUBS, feel pleasure to welcome you in Research Better on the topic of publishing in impactful journals and understanding the new HEC publication policy. This is a sideline of second international conference on digital transformation and management that is happening tomorrow in KUBS auditorium. We would begin our program with the recitation of verses from Holy Quran. For that, I would like to call Mr. Abdurrab from KUBS. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। छोटी सी बात में तिलावत इसलिए की जाती है क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में सूरह फातिहा से लेकर नास तक एक एक हर्फ जो है वो बाबरकत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों की इस जर्नी में अल्लाह ताला की बहुत बरकत और रहमत नाज़िल हो। We are delighted to have here with us such a diverse group of researchers, faculty, and scholars who are united here by a shared commitment to high-quality research and academic excellence. Your presence here does not only reflect your commitment to research, but also your determination to grow as a scholar whose work can make a meaningful difference. Thank you for joining us. We look forward to an engaging and productive workshop, and we wish you a rewarding learning experience. Ladies and gentlemen, this session will move forward learning from those who have successfully navigating the world of impactful research and publication. We have our respected trainers with us, Professor Dr. Khurram Khan Alvi and Dr. Mustafa Haider. Their combined expertise will provide us with valuable perspective on publishing in impactful journals and understanding the revised HEC publication policy. Research is not complete until it is shared, and shared in a way that advances knowledge and inspires others, says none other than ChatGPT. किसी ने कोई बात नहीं कही थी, ऐसे ही ChatGPT से कुछ अच्छा लगा तो मैंने कहा यहाँ पे डाल देना चाहिए. The upcoming session is designed to empower you with some clarity on revised HEC guidelines. For that, I have the honor of inviting Dr. Mustafa Haider, Associate Professor, Department of Public Administration, University of Karachi, an accomplished researcher and trainer who will guide us on revised HEC guidelines, specifically on the topic of weighted authorship policy. Please welcome. ट्रेनर बहुत ही अजीज स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारी इस बैठक में आए। पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस बैठक की। ये जो आइडिया है, ये जो मेरे 2 साल पुराने स्टूडेंट्स अगर यहाँ कोई हो तो उनको ये पता होगा कि मैंने शायद 2 साल पहले अपनी एक क्लास में बात की थी कि हमारी जो MPhil PhD के स्टूडेंट्स हैं बहुत बड़ी तादाद होती है और तमाम स्टूडेंट्स स्कैटर्ड वे में अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और रिसर्च यूजली कही जाती है कि रिसर्च इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग योर आइडियाज, शेयरिंग योर वर्क। और हम अपनी रिसर्च को छुपा के रखते हैं कि मेरी रिसर्च कोई देख ना ले। तो वहीं से एक आइडिया आया और आई वॉज वर्किंग ऑन दिस ड्रीम। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में अगर मेरी अपीयरेंस है, यहाँ भी मैं बहुत कम अपीयरेंस रखूंगा, डॉक्टर खुर्रम के होते हुए
पब्लिकेशन के ऊपर मेरा बोलना ऐसा ही है जैसे सूरज को जो है चिराग दिखाना, इज मोर एक्सपीरियंस एंड मोर कहना चाहिए कि प्रैक्टिशनली मल्टीपल रिसर्च जर्नल्स चला रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन जो ये रिसर्च बैठक का मेरा ख्वाब है, ये 2 साल पुराना था और हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, हमने इसको पेटेंट किया और अब रिसर्च बैठक वुड बी अ सीरीज ऑफ डिस्कशन। ये वाली जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग स्टाइल हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये आगे चलती रहेंगी, डिफरेंट टॉपिक्स आते रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सॉर्ट ऑफ जैसे गोल मेज डिस्कशन होती है, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, we would all would be research scholars discussing and sharing our experiences, sharing our problems। मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बताएगा तो दूसरा बताएगा जी इसका मैंने ये हल निकाला था। क्योंकि एज अ रिसर्चर रिगार्डलेस हम रिसर्च कर रहे हो सोशल साइंस में, रिगार्डलेस हम रिसर्च कर रहे हो मैनेजमेंट साइंस में, रिगार्डलेस हम रिसर्च कर रहे हो प्योर अप्लाइड साइंस में या आर्ट्स और कॉमर्स में, प्रॉब्लम सेम ही होती है। पीएचडी जमा होने तक मर्दों ने गंजा होना ही होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी शुड लर्न हाउ टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। वो जो एक एड में आता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो रिसर्चर्स को भी इसको देखना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस। ये बेसिकली आइडिया था इस बैठक का। और इस पूरी कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने कहा कि मेरी अपीयरेंस सिर्फ इसमें है, अदरवाइज तो बैकएंड पे मैं काम कर रहा हूँ एज अ कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी, बट मुझे था कि ये हमारा पहला सीक्वल है इसका, तो जरा सा रिसर्च बैठक के मुतालिक बताएं आपको, और इंशाल्लाह आप आपके कोलीग्स को डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू महीने 2 महीने में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ये बैठक आप लोगों को मिलती रहेंगी। कभी ये बैठक यहाँ होंगी, कभी डीपीए में, कभी कॉमर्स में, कभी मैनेजमेंट साइंस में, उसके बाद निकल के हम आपके इदारों में भी आ सकते हैं। मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे पास बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स बहुत सारे मौजूद हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अपने एमफिल के बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा कुलीग्स हमारे जो मौजूद हैं, इन्होंने नर्वस कर रखा है मुझे, क्योंकि वो सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में मेरा रिकॉर्ड लगाएंगे, आप तो कुछ नहीं कह सकेंगे, तो कोशिश करता हूँ मैं कम से कम बोलूँ ताकि कम से कम मेरा रिकॉर्ड लगे। पीछे 3-4 बैठे हुए हैं जो बाद में मुझे बहुत बैक बेंचर, ये क्योंकि मेरी वैसे भी स्टूडेंट है तो ये शायद इतना ना बोलें जितना वो लोग बोले। एनीवे, तो अब आते हैं जरा टॉपिक के ऊपर। इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे आसान बात थी वो मैंने ले ली और मुश्किल बातें मैंने खुरम भाई के लिए छोड़ दी थी। लेकिन यस, इट इज द हॉट टॉपिक ऑफ द डे। एचईसी ने क्या किया? वेटेड पॉलिसी बनाई है। अर्लियर ये होता था कि अच्छा, पब्लिकेशन की जरूरत है क्यों? एक पब्लिकेशन की जरूरत तो है टू डिसमिनेट, टू शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर रिसर्च जो आपने की है, पहली जरूरत तो जाहिर है ये है। लेकिन दूसरी जरूरत प्रमोशन भी तो चाहिए, उसके लिए भी चाहिए। आपको लेक्चरर रखना है तो भी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। चले लेक्चरर में फिर भी तरह सा एक ब्रीथिंग स्पेस मिलता है, लेकिन वंस यू अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट में जाना है तो 10 मिनिमम पब्लिकेशन चाहिए, एसोसिएट से प्रोफेसर में जाना है तो आपको 15 पब्लिकेशन चाहिए। इस तरह से बहरहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर कोई हायर मैनेजमेंट पोजीशन पे जा रहे हैं तो उसमें भी पब्लिकेशंस के नंबर होते हैं। बुक पब्लिकेशन और रिसर्च पब्लिकेशन में बहुत बड़ा फर्क है। अब हुआ ये कि यूजली हम कलेक्टिव पब्लिकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जिसमें से कुछ तो वाकई रिसर्च करते थे और कुछ गिफ्टेड नेम होते थे। ये सब आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, गिफ्टेड नेम क्या है। एचईसी ने इस चीज को डिस्करेज करने के लिए एक वेटेड सिस्टम दिया है, और वेटेड सिस्टम ये है कि इफ अ रिसर्च इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड, अब एक्चुअली कंट्रीब्यूट है या नहीं है, लेकिन ऑन पेपर कंट्रीब्यूटेड बाय 4, 5, 6, 7 ऑथर्स, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑथर का जो वेटेज है वही 7th ऑथर का भी वेटेज होगा। यूजुअली 90% चांस ये है कि 7th ऑथर वुड बी अ फ्री राइडर, लेकिन बहरहाल जेन्युइन केसेस भी होते हैं, स्पेशली मेडिकल साइंसेस के। अगर कोई दोस्त यहाँ मौजूद है, बल्कि हमारे डीपी के बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, मेडिकल साइंस में 4-4, 5-5, 6-6 लोग मिलके प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसके प्रपोजल्स होते हैं, उसकी फिर पब्लिकेशंस होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसर्च की पब्लिकेशन इतनी महंगी होती हैं कि समटाइम्स एक अकेला स्टूडेंट उसको पब्लिश भी नहीं करा सकता। जब एचईसी बात करती है कि जी आपने क्वालिटी वर्क करना है और आपने इंपैक्ट फैक्टर रिसर्चेस में जाना है, तो एनीवन नोज इंपैक्ट फैक्टर रिसर्च जर्नल की कॉस्ट क्या होती है?
किसी को आइडिया है? कोई बड़ा इंटरनेशनल जर्नल अगर हो तो उसकी कॉस्ट डॉलर्स में बात करते हैं ना, $300-200 से शुरू होता है ये, और ये इवन $4,000 और $5,000 तक जाता है मेरे एक साल की तनख्वाह। तो पॉसिबल नहीं है, या तो मैं खाना खा लूं या पब्लिकेशन करा लूं। तो इसलिए फिर इसमें ये होता है कि हम लोग मल्टीपल लोग लेते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ जो है उसका पूल इन करते हैं, कुछ इन्वेस्टर होते हैं, कुछ रिसर्चर होते हैं, नाम आ जाता है। बट HEC हैव कॉट इट, HEC ने हमें पकड़ लिया, और अब HEC ये कहता है कि नहीं जी ऐसा अब नहीं चलेगा। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, कपल ऑफ मंथ हुए इसको, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वेटेड पब्लिकेशन जर्नल या पब्लिकेशन वेटेज सिस्टम। ये क्या है, इसके ऊपर बात करना है। लेट्स से मेरी एक रिसर्च है, इसमें मैं अकेला ऑथर हूं, तो ये बताइए कि इस रिसर्च का वेटेज मेरे पास कितना आएगा? 100% आएगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैंने एक रिसर्च की और उसमें मैं हूं और मेरा एक कोलीग है, उसमें कितना आएगा? नहीं, वो भी 100%। वो मेरी भी एक रिसर्च काउंट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने का। वो मेरी भी एक रिसर्च काउंट होगी और मेरे जो कोलीग हैं उनकी भी एक रिसर्च काउंट होगी। अब आ जाए, मैंने एक रिसर्च की, उसमें एक मैं हूं और 2 मेरे और कोलीग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो अब ये 3 लोग हो गए। अब जरा बताएं क्या होगा? अभी भी ऑथर ए विल गेट 100%, यानी कि उनका एक पेपर है। ऑथर बी 100% एक पेपर है, ऑथर सी 100% एक पेपर है। क्लियर हो गई बात? अब यहां से स्टार्ट हो रही है असल में कहानी। जो HEC का वेटेड सिस्टम है, हमारा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का भी एक ग्रुप है, उसमें भी बहुत ज्यादा पिछले दिनों चल रहा था। तो 1-2 असातिज़ा ने कहा कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर है, नंबर ऑफ ऑथर्स के ऊपर ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि दिस न्यू policy is triggered when we have 4 or more than 4 authors। पहली चीज तो ये ध्यान में रखें, ये पॉलिसी कब ट्रिगर होगी? जब 4 या 4 से ज्यादा ऑथर होंगे, 3 ऑथर तक all 3 author will get credit of complete paper। उस पेपर के वेटेज को डिवाइड नहीं किया जाएगा। जैसे ही आपकी पब्लिकेशन में ऑथर ए, ऑथर बी, ऑथर सी, ऑथर डी, नाउ द मैच स्टार्ट्स। अब यहां पे आपका जो पेपर है उसकी ब्रेकअप स्टार्ट हो जाएगा। अब उसका ब्रेकअप कैसे है जरा ये सुनिएगा। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं। ऑथर ए जो है, अच्छा नहीं, ऑथर ए जो है उसके बी, सी, डी, we have 4 authors in this paper। I'll repeat myself to enforce this idea। This weighted journal publication scheme is applicable when we have 4 or more than 4 authors। 3 authors तक ये स्कीम पे कोई असर नहीं है। It's as same as the conventional scheme was। ठीक है, तो अब A, B, C in a paper we have 4 author। Let's say author A इसका मेन ऑथर है, इसको उस पेपर का वेटेज मिलेगा 30%। अब मैं थोड़ा सा ये समझा दूं वेटेज से क्या मुराद है। अगर ये पेपर मैंने अकेले किया होता तो इसका कितना वेटेज मुझे मिलता? 100%। ये पेपर मैंने अकेले नहीं किया। अब ऐसे 3 पेपर मैं करूंगा तो 30 + 30 + 30 तो भी 100 नहीं होगा, तो कितना होगा? 90%। फिर कोई एक ऐसा पेपर करूंगा जिसमें 13.3 या 10 अभी बताऊंगा, वो मेरा होगा। तो ये 4 पब्लिकेशन मिलके एक पेपर बनेगा। मुश्किल हो गया है, लेकिन कब? जब आपके 4 ऑथर भी तो 4 है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाउ यू हैव टू पब्लिश। इफ यू आर वर्किंग लाइक दिस, if you are working with a consortium of colleagues or the students and the consortium should be more than 4, तो उस वक्त आपका वेटेज डिवाइड होगा। अब वो कैसे डिवाइड होता है सुनिएगा। पहले ऑथर है आपको 30 मिलेगा, सेकंड ऑथर है आपको अगेन, या जो भी आपका कोलीग सेकंड ऑथर है, स्टूडेंट सेकंड ऑथर है, उसको 30% मिलेगा। ठीक है,
और ये जो दो ऑथर हैं, इन दो ऑथर्स के ऊपर फर्दर डिवीजन होगी परसेंटेज की। लेकिन यहां पे एक नई टर्म का इंट्रोडक्शन में देने जा रहा हूं, और वो है डॉक्टर साहब कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। यहीं पे दे देना चाहिए इनको। अब अगर मैं अकेला ऑथर था तो मैंने ही ईमेल की थी, मैंने ही पेपर बनाया था, मैंने ही जर्नल सेलेक्ट किया था, मैंने ही करेक्शंस की थी, मेरे ही आईडी से पेपर गया था, तो मैं ऑथर भी हूं और मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर भी हूं। अब 4 लोग या 3 लोग जब ये काम कर रहे होंगे तो चारों तीनों तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं होंगे ना। कॉरेस्पॉन्डिंग में से कौन होगा? एक होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर एक होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर जो भी होगा, दैट ऑथर विल गेट 30% एक्स्ट्रा मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स। टीचर को वही आ जाता है परसेंटेज। यानी कि अगर ऑथर 1 आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इसको मिलेंगे 60%। अगर ऑथर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इनको मिलेंगे जी नहीं, इनको 30% ही मिलेंगे। और बकिया जो है ये डिवाइड होंगे नीचे वाले। ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है फॉर्मूला अगर ऑथर 1 कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगेन ये एक अजीब सी चीज है, इसको मुझे भी समझने में, मेरे लिए भी नया है ना, मैंने भी बहुत दफा इसको पढ़ा फिर समझा। ऑथर 1 अगर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है, दैट ऑथर विल गेट 60% मार्क्स। यानी कि दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर मेरा कोई ऐसा काम है, अगर मेरी कोई ऐसी पब्लिकेशन है, अगर मेरी कोई ऐसी स्टडी है जिसके अंदर आई हैव गॉट मल्टीपल ऑथर्स, तो मेरी कोशिश और मेरा मेन कंट्रीब्यूशन है और मैं ही कॉरेस्पॉन्डिंग हूं, तो मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो 60% होगी एज ऑथर 1। उसके बाद जो मेरे बिल्कुल नेक्स्ट ऑथर होगा वो होगा 30, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो चाहे वो ऐसे ही हो। और उसके बाद जो 2 ऑथर हैं इनको 20% मिल जाएगा। 20% इनको मिलेगा, 20% इनको मिलेगा। ये 100% वेटेज बन गया। केस नंबर 2, वी हैव गॉट 5 ऑथर्स, A, B, C, D and E. Now we have got 5 authors over here. Author 1 30%, author 2 अगर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑथर है तो 30%, और रिमेनिंग 40% जो है वो इनमें डिवाइड होगा 13.33%, 13.33% एंड 13.33%। ये 40% बन जाएगा। ये इस तरह से डिवीजन होंगे। अब इसके अंदर सम टाइम हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मैं एज अ सुपरवाइजर इन्वॉल्व हूं और मेरे स्टूडेंट्स हैं 4 या 5, वो साथ में काम कर रहे हैं। तो लेट्स से जो 5 हैं इसमें ये मैं हूं और 1 2 3 4 ये 4 स्टूडेंट हैं। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स का लीड है जिसका आइडिया था, जिसने मेन काम किया था। अब एज अ सुपरवाइजर मेरी इतनी मेंटोरिंग होनी चाहिए कि आई शुड बी दी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर एज वेल, और मैं इनकी पब्लिकेशन में हेल्प आउट कर रहा हूं। ये तीसरे सिनेरियो पे मैं आया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो पहला ऑथर है उसको अगेन 30% मिलेंगे, और मैं एज अ सुपरवाइजर इसको सुपरवाइज कर रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूं, चाहे मेरा नंबर किसी भी लेवल पे हो, चाहे मैं 5th पे हूं और कॉरेस्पॉन्डिंग हूं, या मैं 5th पे हूं और सुपरवाइजर मैंने अपने साथ लगाया हुआ है, तो आई विल गेट 30%। यानी कि एक जो ये मसला होता था स्टूडेंट वर्सेस सुपरवाइजर, बहुत बड़ा मसला, प्रॉब्लम सम टाइम होती थी कि स्टूडेंट का नाम पहले लिखना है, सुपरवाइजर का नाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो ड्यू रिस्पेक्ट आते हैं, पेपर उनका होता है, थीसिस उनका होता है। ऑल्दो एक बात और समझिएगा कि आपका जो भी रिसर्च होता है किसी सुपरवाइजर के अंडर, वो आपका और आपके सुपरवाइजर का कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। आपके सुपरवाइजर का भी उस पर उतना ही हक होता है। लेकिन यूजली मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स का नाम पहले लिखवाता हूं और अपना नाम हमेशा बाद में, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली पब्लिकेशन की ज्यादा जरूरत मेरे स्टूडेंट को है। आई हैव अचीव एवरीथिंग, तो अब मुझे अपना नाम ऊपर नहीं लिखवाना चाहिए अनलेस कोई मैंने खुद से काम किया तो सिंगल ऑथर कर लूं भाई, या मैं अगर अपने साथ किसी को गिफ्ट कर रहा हूं तो एक अलग बात है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें जरूरी है कि हम एज अ सुपरवाइजर अगर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, लेकिन उसमें फिर हम ये करें कि हम 30% जो लीडर है उसको देंगे, 30% एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जाएगा,
और अगेन अब रिमेनिंग 40% वुड बी डिवाइडेड बिटवीन 13.33, 13.33 एंड 13.33% टू द स्टूडेंट्स जो के नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पे मौजूद हैं। तो ये बेसिकली HEC का वेटेज जर्नल पॉलिसी सिस्टम है। टू मी बेहतर है, क्योंकि ओवरऑल बहरहाल हमें एकेडमिकली कंट्रीब्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा, हमें एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, बट एक जो प्रॉब्लम है इसमें, फिर HEC को चाहिए कि HEC फिर हमें सपोर्ट करे इन टर्म ऑफ पब्लिकेशन, इन टर्म ऑफ पब्लिकेशन ग्रांट। हमारे बहुत सारे कोलीग इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं, वो बताते हैं कि उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा होता है कि अगर आपका पेपर पब्लिश होता है किसी इंपैक्ट फैक्टर में, तो उसके पैसे यूनिवर्सिटी रिम्बर्स करती है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में जाहिर है इस तरह का रूल नहीं है, लेकिन आई थिंक ये होना चाहिए। तो अगर HEC एक तरफ से रूब्रिक्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रूब्रिक्स को मैच्योर कर रही है, तो दूसरी तरफ थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम भी उन्हें बेहतर करना चाहिए। तो हमें दोनों तरफ को बैलेंस करके जो है इस पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो दिस इज माय पार्ट।